जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে জঙ্গিদের বোন উল্লেখ করে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী বেফাঁস মন্তব্যে দেশ জুড়ে বিতর্কের মধ্যেই এবার দেশের সেনার বিরুদ্ধে বেফাঁস মন্তব্য করে বিতর্কে রীতিমতো ঘি ঢাললেন মধ্যপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী জগদীশ দেবরা। প্রথমে মন্ত্রী কনওয়ার বিজয় শাহ অপারেশন সিঁদুরের সফল নায়িকা শুধু সোফিয়া কুরেশিকে অপমান করেছিলেন, এবার গোটা দেশের সেনা এবং সৈনিকদের অসম্মানসূচক মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন মধ্যপ্রদেশের রাজ্য সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রীর এমন দুঃখজনক বক্তব্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে বিরোধীরা। শানিত সমালোচনা করে বিজেপিকে রীতিমতো ধুইয়ে দিলেন মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাথে। सिंधु को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहिए। पाकिस्तान की रूह कपा दी उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है। और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। अभी तक आपने एक बार भी जेपी नड्डा जी के मुंह से, अमित शाह जी के मुंह से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सुना कि यह बिल्कुल गलत कहा गया है? अभी तक बीजेपी के किसी भी नेता ने आके कहा जगदीश देवड़ा और विजय शाह जैसे लोगों की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है? अगर जगदीश देवड़ा की अभी कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उनकी मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण है, वरना यह बात कहने की हिमाकत और हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता है। উপমুখ্যমন্ত্রী জগদীপ দেবরা ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সৈন্যরা প্রধানমন্ত্রীর মোদির পায়ে মাথা নত করে এমন বেফাঁস মন্তব্যকে ঘিরে দেশ জুড়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রীর ঘৃণ্য এবং এরকম দুঃখজনক বক্তব্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে বিরোধীরা। শানিত সমালোচনা করে বিজেপিকে রীতিমতো ধুইয়ে দিয়ে দিলেন মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাথে। বিজেপিতে অনুশাসন বলতে কিছু নেই উল্লেখ করে জেপি নাড্ডা, অমিত শাহ সহ বিজেপি নেতৃত্বদের বিঁধলেন কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাথে। अभी तक आपने एक बार भी जेपी नड्डा जी के मुंह से, अमित शाह जी के मुंह से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सुना कि यह बिल्कुल गलत कहा गया है? अभी तक बीजेपी के किसी भी नेता ने आके कहा जगदीश देवड़ा और विजय शाह जैसे लोगों की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है? अगर जगदीश देवड़ा की अभी कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उनकी मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण है, वरना यह बात कहने की हिमाकत और हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता है। মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কনওয়ার বিজয় শাহ থেকে আরো কয়েক ধাপ বাড়িয়ে এবার সেনাকে অপমান করেছেন উপমুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রী বিজয় শাহ শুধু কর্নেল সোফিয়াকেই টার্গেট করেছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে মধ্যপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী জগদীশ দেবরা দেশের সমস্ত সেনাবাহিনীকে মোদির পায়ে মাথা নতমস্তক করে বলে সেখানে বেফাঁস মন্তব্য করেছেন। হাইকোর্টের চাপে পড়ে মন্ত্রী বিজয় শাহের বিরুদ্ধে পুলিশের দায়েরকৃত সেই মামলা নড়েবড়ে মামলার সেখানে ইস্যু সামনে এনে পুলিশকে এক হাত নিলেন মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া। তিনি বলেন দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় যারা নিজেদের বিলিয়ে দিচ্ছেন, যাদের কাছে সারা দেশ নতমস্তক, সেই সেনাবাহিনী এবং সৈন্যরা যে কারোরই পায়ে মাথা নত করার মতো সমস্ত সেনা এবং দেশের অপমান এটা। এই দেশের কোনো ব্যক্তি এমন কথা বলতে পারে না, কারণ
পহেলগাঁও হামলার পর সেনাবাহিনী পাকিস্তানে প্রবেশ করে সন্ত্রাসীদের আস্তানা ধ্বংস করেছে এবং পাকিস্তানের আত্মাকে নাড়া দিয়েছে। আর সেই সেনাবাহিনী সম্পর্কে এমন কথা বলা পাপ, কিন্তু বিজেপি এবং তার নেতারা বারবার সেই কাজটি করছেন। দেশের প্রতিটি মানুষের সেনাবাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে এবং সমগ্র জাতি কৃতজ্ঞ, কারণ সেনাবাহিনীর কারণে আমরা নিরাপদ থাকতে পারছি। সেনাবাহিনী সম্পর্কে এমন বিদ্বেষপূর্ণ এবং নোংরা চিন্তা ভাবনা সম্পন্ন ব্যক্তিরা কোনোভাবে সাংবিধানিক পদে থাকার অধিকার নেই। এবার ক্ষমা চাওয়া কাজ করবে না, বিজেপি নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকবে না এবং প্রধানমন্ত্রী মোদিও লুকিয়ে থাকতে পারবেন না। তিনি দাবি করেন, যদি বিজেপি আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে জগদীশ দেওড়ার সে বরখাস্ত না করে, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে নরেন্দ্র মোদী সেনাবাহিনীকে তার কাছে মাথা নত করতে বলছেন এবং তার সাথে তাদের নীরব সম্মতি এবং পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। না হলে কেউ এই কথা বলার সাহস পাবে না, মন্তব্য করে বিজেপি সরকার এবং নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন সুপ্রিয়া শ্রীনাথে। আমাদের হাতে মন্তব্য রয়েছে, শুনবো বিস্তারিত। सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है। और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो जब जब देश पर संकट आता है, इस बार भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को नाको चने चबवाने का काम जो सेना करती है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है। और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। हमारी सेना ने हर बार दुश्मन को धूल चटाने का काम किया है और इस बार भी इतनी आक्रामक कार्रवाई की कि पाकिस्तान के पैर कांप गए, उनकी रूह कांप गई। एक ऐसी सेना जिसके लिए इस देश के हर व्यक्ति के मन में सम्मान है, आदर है और पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है कि हम शांति से, हम सुरक्षा से, हम आराम से इसलिए रह पाते हैं क्योंकि हमारे जाबाज सैनिक इस देश की सुरक्षा करते हैं। और वो इस देश की सुरक्षा तपते हुए रेगिस्तान से लेकर हाड़ कांपती हुई ठंड वाले सियाचिन के ग्लेशियर में खड़े होकर करते हैं। और तब हमारा लोकतंत्र, तब हमारी भूभागीय अखंडता, तब हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। और ऐसी सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में इतनी दुर्भावना, इतने गंदे विचार हैं, वो व्यक्ति किसी भी पद पर रह ही नहीं सकता है। एक लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री रहना तो विचार के बाहर की बात है। और इस बार माफी मांगने से, इस बार खेद व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। इस बार ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना पड़ेगा। इस बार बीजेपी मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी, इस बार प्रधानमंत्री छुपे नहीं रहेंगे। और अगर आप ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त नहीं करते हैं, अगर जगदीश देवड़ा की अभी कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उनकी मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण है, वरना यह बात कहने की हिमाकत और हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता है। यह है कि अभी 48 घंटे नहीं बीते हैं और बीजेपी के ही मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने इस देश की सबसे होनहार, सबसे वीर, सबसे बहादुर सैनिक बेटी सोफिया कुरैशी के बारे में जो कहा वो आपने सुना। वो सुनकर पूरा देश स्तब्ध है। मैं उन शब्दों को दोहराऊंगी नहीं क्योंकि मैं उस तरह का पतन नहीं करना चाहती हूं इस मंच से। और बीजेपी ने इस आदमी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
बीजेपी और मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही जब तक कि जबलपुर हाई कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया कि एफआईआर हो। और एफआईआर भी बिल्कुल अनमने ढंग से बिना प्रॉपर चार्जेस लगाई की गई और उसका कच्चा चिट्ठा आज कल हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान बयां हो चुका है। क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी और सारी सरकार, केंद्र की भी और मध्य प्रदेश की भी, विजय शाह को बचाने में जुटी हुई थी, अब वो जगदीश देवड़ा को बचाने में जुट जाएगी। असलियत यह है कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान कहा कि जिस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और एफआईआर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे संज्ञेय अपराध दर्शाया जा सके। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह ड्राफ्ट ही ऐसा बनाया गया है कि इसको रद्द किया जा सके और बेंच ने आगे कहा कि इस एफआईआर में कुछ नहीं है। बेंच ने कहा इसमें सुधार करना चाहिए, बिना हस्तक्षेप के और बिना दबाव के ऐसा एफआईआर की जांच को आगे बढ़ाई जाए और उसकी सुनवाई फिर से होगी। यह असलियत है मध्य प्रदेश की सरकार की, यह असलियत है मध्य प्रदेश की पुलिस की, यह असलियत है बीजेपी की मध्य प्रदेश में और बीजेपी की दिल्ली में। अभी तक आपने एक बार भी जेपी नड्डा जी के मुंह से, अमित शाह जी के मुंह से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सुना कि यह बिल्कुल गलत कहा गया है? अभी तक बीजेपी के किसी भी नेता ने आके कहा जगदीश देवड़ा और विजय शाह जैसे लोगों की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है? सरकार तो बहुत दूर की बात है। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।